Hello friends, welcome to the world of science. This is chapter number 1, gravitation, from standard 10 science 1. Myself Kavita Kobane is going to present it to you and going to explain magnitude of centripetal force, earth's gravitational acceleration, value of g, mass and weight. Let's start the chapter. Okay, now we are going to see the magnitude of centripetal force it is. Suppose consider an object moving in a circle with constant speed. We have already seen that the motion which is possible when an object is constantly acted upon by a force directed toward the center of the circle. Suppose we will consider this circular orbit, in that the object is just moving in a circular motion it is there. Okay. Now this force which is acted on that object is called the centripetal force. In the previous topic we have learned from the center the force which is acted on this object, that is the central force here in this line, and in because of that only the object is just moving in a circular motion. Now here we are going to find out the magnitude of centripetal force. For that the formula how it is derived. Okay, so first of all we will consider here that the object which is moving around, that force can be given as by this formula, F is equal to mv square by r. That is the formula just to find out the force which is acting on the kinematical equation. According to that this equation is given, we can use this to find out the centripetal force which is acting on that object. Here the speed of the planet can be expressed in the terms of period of revolution, that is t, as we have to just do it here. Means in the terms of t we will going to derive the centripetal force formula here. Now suppose we will just consider one of the planet and its period of revolution. One revolution means the perimeter of the orbit. Here we will consider this t. T means what? Period of revolution. Period of revolution means this is just moving in this direction. This. So total how much distance it will cover? That is the circumference of a circle. Circumference of a circle is how much it is? That is the distance traveled is circumference. So circumference formula is 2 pi r. And how much time it has taken? That is t. So velocity, or we can say the speed's formula is distance traveled by the time. So v is equal to distance traveled by time. According to that the formula will become like this, 2 pi r upon t. Now we know that the force which is acting on the object can be given, that the force which is equal to F is equal to mv square. This is the formula which is acting on the object. Now if you will replace this v by this one here, this v square, mv square by r, here v square we have replaced by 2 pi r by t. Here this formula we have put it over here, and this is square, so this is square. Now when you square it up it will become like this, 2 2s are 4 pi square r square t square. So here it becomes 4 pi square r square and here t square, and this r I have written here 1 by r. So when you will solve it you will find here this r square and this r, they get cancelled. One of the r will remain here, this one. This is 4 pi r square, here same m it will come here, 4 m pi square, this is r, and here it remains t square. Now this will not give any solution to us, so by using the maths formula, that is dividendo and componendo and all this you have learned. So by that only we have used here r square, we have multiplied and divided both by r square. So this full formula, this one full formula is multiplied by r square and divided by r square. So now here this r and this r, it will become r cube. This r square and r t square, it will be like this only, and remaining all things as it is, 4 m pi cube, r into r is r cube, and t square and r square. Now if you will just see the formula here, then this formula you will identify that r cube by t square. This is one of the Kepler's law here, third law we have learned. So it is inverse of this law. Okay, so r cube by t square, here we have separated out, remaining we kept it like this, 4 m pi square, 4 m pi square, and here this r square we kept it as it is, and this r cube and t square we have taken out.
r cube and t square, that is the inverse of that Kepler's law it is. Actually Kepler's law is given here, t square by r cube is equal to constant. Now if it will become inverse, so this will also become inverse, so it will become 1 by k. So in place of this one we have replaced it by k. So 4m pi square by r square into k, this is the centripetal force which is acting on the object, and because of that the object is just revolving around in a circular motion. We saw that the centripetal force is acting on the object, that's why the object is revolving in a circular motion. Now we have to see the Earth's gravitational force. You must have observed whenever we are just throwing an object upwards, it remains over there just for a few seconds till that this velocity becomes 0 and it will come down with a certain different type of velocity it is there. And when we are just throwing it a ball, suppose example we will take, okay, when we are just throwing a ball up, it will go up to a certain limit only, certain height it will go, and from there it will come down. So when it is going up, the height is increasing and its velocity is decreasing, and when the velocity will become 0, it will automatically come back to the ground again. Okay, so it will start falling down. And one more thing is there, when it is falling down, it will fall down vertically only. Just we have learned gravitation. Isaac Newton, he told that the object whenever it is falling down vertically and towards the center. So when we are just throwing it up, the Earth's force is just pulling it back. When the velocity will become 0 here, then it will just fall down soon. So we can say the Earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. The center of mass of the Earth is situated at its center. Just here we can say at the center it is, the center of mass is there, and here the center of mass is applying the force on the object. Because of that the object is just falling down vertically towards the Earth. Because of this force only an object falls vertically. Because of that only, as I said, when we throw the ball up, it will fall down. When you jump up, it will fall down. When we just throw any of the object up, okay, even an animal also jumps up, they also fall down vertically because of the gravitational force applied by the Earth, and that gravitational force is because of the mass of the Earth. As like objects, the Earth is applying the gravitational force on the heavenly bodies which is near to the Earth's atmosphere. The gravitational force due to the Earth also acts on the moon, because of which it revolves around the Earth. Okay, it is near about the Earth, that's why it is applying a force on it, that is the centripetal force which is acted on the moon, and because of it, it is just revolving around the sun. The velocity of the moon and the satellite along their orbits, if this velocity was not there, they would have been fallen on the Earth. Suppose this moon is stationary, okay, when it is having velocity means every time here when it is coming, the direction of velocity is like this. When it will come here, the velocity will be like this. When it will come here, the velocity will be like this. So every time the velocity changes, but this velocity is making an angle with that centripetal force. Here we can say this is the centripetal force which is acted on the moon. ये centripetal force moon के ऊपर act हो रहा है, ये moon की velocity है, and when it will become 90 degree होने के बाद आपने last year work done पढ़ा था, when the angle between these two is 90 degree, that is the zero work done. ज़ीरो वर्क डन है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे मून ना बाहर की तरफ गिरेगा ना ही अंदर की तरफ गिरेगा. इसकी वेलोसिटी अगर थोड़ी भी चेंज हुई तो या तो ये मून इस ऑर्बिट के बाहर चला जाएगा, और अगर वेलोसिटी कम हुई तो ये मून अर्थ के ऊपर गिर भी सकता है. बट यहाँ पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, इसलिए ये इसके अंदर गिरेगा नहीं. आपने स्टार्टिंग में एक पत्थर वाला एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा. जब तक हम ये धागा यहाँ पकड़ के रखते हैं, इस धागे में जब तक फोर्स है तब तक ये सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा. जहाँ पे आपका ये सेंट्रीपिटल फोर्स कम हुआ और इस धागे का जो सर्कुलर मोशन है, जो इसकी वेलोसिटी है उस सर्कुलर मोशन पे, वो अगर कम हुई तो ये धागा या तो बाहर की तरफ गिरेगा या फिर अंदर की तरफ गिरता है. मीन्स बाहर पत्थर दूर चला जाता है.
सो सेम थिंग हैपन्स विद द प्लैनेट्स ऑल्सो. ये आपका अर्थ भी अप्लाई कर रहा है मून के ऊपर. दोनों के बीच में मीन्स ये जो ये डायरेक्शन है ये वेलोसिटी है मून की. हर जगह पे उसकी डायरेक्शन ऐसे ही 90 डिग्री में बनती जा रही है. ऐसे यहाँ पे भी गया तो भी वो 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री किसके साथ? सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल नॉट फॉल डाउन ऑन द अर्थ और इट विल नॉट गो बियॉन्ड द अर्थ. Next what we have to learn is the earth's gravitational acceleration, that is called as a small g. Acceleration you have learned in previous standard also. Acceleration means change in velocity. जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक्सेलरेट करते हैं हम लोग, मीन्स उस टाइम पे वेलोसिटी थोड़ी रहेगी, बाद में जाके उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. तो ये जो चेंज होता है उसकी स्पीड में, हम जो चेंज कराते हैं वेलोसिटी में चेंज कराते हैं, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. इसलिए हम बोलते हैं ना गाड़ी एक्सेलरेट किया हमने करके. So the acceleration produced in a body due to the earth's gravitational force is called the acceleration due to gravity or the earth's gravitational acceleration. Okay, and its magnitude is denoted by g, by small g. हम small g से हम लोग earth का acceleration दिखाते हैं. earth का acceleration क्यों? क्योंकि gravitational force ये उस object की velocity बढ़ाता है या फिर उसकी velocity कम करता है. So that's why it is called as a earth's gravitational acceleration, and that thing happens because of the force of the earth. This quantity is directed towards the earth center. ये जो force apply होगा earth's gravitational acceleration होगा, ये इसका direction किसकी तरफ होगा? earth की तरफ होगा. Okay, it is a vector quantity. Vector quantity means what? Which is having a direction. Scalar means which is having only magnitude but no direction. Vector quantity means ऐसी quantity जिसमें आपको direction भी मिलेगा और उसको आप magnitude भी मिलेगा, means we can measure it also. Acceleration का formula क्या है? A is equal to change in velocity divided by time. Change in velocity means what? That we are having a initial velocity and final velocity. So here v is the final velocity and u is the initial velocity. इन दोनों का difference means change in velocity मिलेगा and divided by time. That is the formula for the acceleration. अर्थ के ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा तो उसे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम बोलेंगे. जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने के बाद वो नीचे की तरफ आती है, नीचे आते समय उसका फोर्स बढ़ जाता है. तो वो फोर्स बढ़ जाता है इन द सेंस उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है. तो वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही होती है. नाउ वैल्यू ऑफ जी वी हैव टू फाइंड आउट. जी की वैल्यू क्या है? अर्थ के ऊपर जितनी भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक जैसा ही एक्सेलरेशन अप्लाई किया जाता है और वो जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. उस जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे? यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लेगा. दैट इज़ द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच यू हैव लर्न. ओके, दैट वी हैव टू कंसिडर हियर. मीन्स न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. उसमें क्या दिया था फॉर्मूला? एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, सो दैट इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये फोर्स का फॉर्मूला दिया था. दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स होता है that can be shown by this, and the other formula which is given by the same Newton only, that is of force, but it is given as ma here. Now a की जगह हमने क्या लिखा है? वहाँ पे g लिखा है because यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेशन किसके वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से. so that's why we have taken it this as a for mg it is there. अब ये दोनों ही फोर्स के फॉर्मूले हैं. so we have to just do the calculation and we have to find out the वैल्यू ऑफ जी. हमने ये फाइंड आउट करना है. सो दोनों एफ एफ है इसलिए दोनों वैल्यूज लिखा. जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी. अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ क्या क्या है? जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. एम एम मतलब हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया? ये जो अर्थ है अर्थ का मास कैपिटल एम के थ्रू दिखाया जाएगा और उसके ऊपर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. वो ऑब्जेक्ट स्टोन या फिर ह्यूमन बीइंग कुछ भी हो सकता है. उस ऑब्जेक्ट का मास हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है. ओके, एंड हियर द आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट विच इज़ देयर ऑन द अर्थ. दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इट इज़ देयर. सो दैट वी हैव टेकन हियर. सो हमारा ये जो फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होगा. ये आर स्क्वायर का कैपिटल आर स्क्वायर बन जाएगा. अब यहाँ पे देखो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी. इसमें कॉमन क्या चीज़ है आपकी? एम और एम है. सो दे बोथ विल बी shortlisted. They will be cut and then the whatever the remaining formula is there that will come here. The g will remain. So g I have written here.
क्या बचेगा, कैपिटल जी, कैपिटल एम और आर स्क्वायर बचेगा. सो हियर कैपिटल जी, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपका एक्सेलरेशन कैसा चेंज होता है. आपका एक्सेलरेशन चेंज होने के लिए रेडियस भी रिस्पॉन्सिबल है. यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है. इन्वर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि अगर रेडियस बढ़ेगा या कम होगा तो उसके हिसाब से जी की वैल्यू अपोजिट में चेंज होगी. सी ये केयरफुली, आर अगर बढ़ता है मतलब आपका रेडियस अगर बढ़ता है तो आपकी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. आपका रेडियस अगर कम हुआ तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. सो हियर दिस जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ आर. मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आर के हिसाब से, रेडियस ऑफ अर्थ है आर मीन्स कैपिटल आर, तो उसके हिसाब से वो चेंज होगी. और किसके साथ वो सेम बढ़ेगी और किसके साथ होगी, तो वो एम के साथ है. एम मीन्स मास ऑफ द अर्थ. मास अगर अर्थ का बढ़ गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और अगर आपका मास कम हो गया तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी कम हो जाएगा. सो the g is directly proportional to the mass of earth and g is inversely proportional with the distance between the center of mass and the object. अब यहाँ पे इनमें से कुछ की वैल्यूज फिक्स है. m की वैल्यू फिक्स है, कैपिटल R की वैल्यू फिक्स है, and we will put it up and we will solve it. Here the mass of the earth is given as 6 into 10 raised to 24 kg. R means the radius of the earth. The value is 6.4 into 10 raised to 6 meter. एंड कांस्टेंट जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट वो कैपिटल जी है, उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज टू -11. वी पुट इट ऑल द वैल्यूज हियर. जी कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10, तो 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 डाला. एम मीन्स दैट इज द मास ऑफ द अर्थ, दैट इज 6 इंटू 10 रेज टू 24. आर मीन्स द रेडियस, so 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर. अब इसको हमने सब ब्रैकेट को ओपन किया और उसको सॉल्व किया है. नाउ वी हैव पुट द वैल्यूज, कैपिटल जी, कैपिटल एम, यहाँ पे आर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस स्क्वायर. नाउ वी हैव ओपन द ब्रैकेट. 6.67 इंटू 6 आई हैव सेपरेटेड आउट. ये 10 रेज टू 11 और 10 रेज टू 24, तो यहाँ पे 10 रेज टू 24 -11 आएगा, और नीचे 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 इंटू 2 इज 12. 6.4 दो बार लिखा मैंने, ये आएगा 10 रेज टू 12. अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 24 -11 किया तो कितना आता है, 13, और 10 रेज टू 12. सो 10 रेज टू 12 और 13 इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आता है सिर्फ 10 रेज टू 1. ठीक है, ये 10 के पावर्स शॉर्ट आउट हो गए. अब ये वाला जो है इनको हमें कैंसिल करना है, रिड्यूस करना है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज जी इज इक्वल टू 9.77 इंटू 77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 77 है तो इसे हम यहाँ पे 9.8 भी राउंड अप कर सकते हैं. नाउ द वैल्यू ऑफ जी, जो वैल्यू है उसका असर कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से ये जी की वैल्यू थोड़ी चेंज भी होती है. बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है ऐसा नहीं है, बट माइनर चेंजेस होते हैं. बट ये किसकी वजह से होते हैं, सो देयर आर सम फैक्टर्स विच इज़ जस्ट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ g. So we will find the variation in the value of g. अब उसमें पहला फैक्टर क्या है, that is the change along the surface of the earth. मतलब आप अर्थ के सरफेस पे कहाँ खड़े हो उसके बेसिस पे g की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती जाती है. बहुत ज़्यादा चेंज होता है ऐसा नहीं, बहुत माइन्यूट चेंज होता है. ओके, तो उसके सरफेस के हिसाब से होता है. अभी यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाया, इसमें देखो अर्थ का दिया है. अर्थ का शेप आपको पता है कि वो ओवल है, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है. सो इट इज़ बल्जिंग एट द इक्वेटर. इक्वेटर में क्या हो रही है, बल्ज हो रही है, मोटी हो रही है, और वो पोलर इसमें जाके क्या होती है, फ्लैट हो जाती है वहाँ पे. तो इसका मतलब अगर ये बल्जिंग हो गया तो सेंटर से लेके यहाँ बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो है दैट इज़ आर, और यहाँ से लेके पोलर इसका जो है वो भी सेंट्रल से लेके डिस्टेंस है. तो ये दोनों ही क्या है, आर है. लेकिन इसमें ये जो आर है ये इक्वेटर में बड़ा है, मतलब आर की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और ये वाले आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो इफ़ रेडियस इज़ लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल, मतलब यहाँ पे इक्वेटर पे वो बहुत बड़ा रेडियस बन जाएगा और पोल पे ये छोटा. द वैल्यू ऑफ जी इज़ दस हाइएस्ट, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पोल. यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 इंटू 9.832 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर की तरफ है, इक्वेटर के ऊपर खड़ी, तो उसके ऊपर कितना फोर्स, कितना एक्सेलरेशन एक्ट होगा, दैट इज़ 9.78। क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा ना थोड़ा सा। सो इस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। आप यहाँ से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब एल्टीट्यूड चेंज करोगे आपका, ओके, ये इक्वेटर से ऐसे 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 एंगल चेंज होता जाएगा और यहाँ पे आप पहुँचोगे तो यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा। ओके, सो ये क्या हो गया आपका, दैट इज़ चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप कौन से सरफेस पे कहाँ पे खड़े होते हो उसके हिसाब से जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, बहुत नहीं, बहुत कम चेंज होती है, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो है वो जी की वैल्यू का इफेक्ट करता है, वो है चेंज विद द हाइट। अब हाइट के हिसाब से भी जी की वैल्यू क्या होती है, वैरी करती है। आपके टेक्स्ट बुक में देखो, वहाँ पे दिया हुआ पेज नंबर 9 के ऊपर आपको प्लेस दी हुई है, हाइट दी हुई है और वहाँ पे जी की वैल्यू दी हुई है। सो स्टार्टिंग में आप देखोगे तो हाइट जो है आपकी एवरेज दी है, सरफेस के ऊपर कोई अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है या कोई चीज़ ऊपर है एग्जैक्टली, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है। और जैसे ही आप माउंट एवरेस्ट पर जाते हो, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8.8 किलोमीटर और 8,842 मीटर ऐसे करके है। सो दैट इफ़ यू विल कंसिडर दैट टाइम ऑल्सो योर जी वैल्यूज़ विल बी 9.8 ओनली। आप उससे भी ज़्यादा हाइट पे जाते हो, दैट इज़ मैन मेड बलून उसमें उड़ता है जिसकी हाइट होती है 36.6 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। वहाँ जाके आपकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है बहुत 1.1 के इससे कम हो जाती है। सो जैसे जैसे आप ज़्यादा ऊपर जाओगे वैसे वैसे वो कम होगी। थोड़ी थोड़ी हाइट पे या 100-200 किलोमीटर के 5-10 किलोमीटर्स पे इसकी वैल्यू एकदम चेंज होगी, ऐसा नहीं है। सो आप अगर वेदर सेटेलाइट जो है वो 400 किलोमीटर पे है, वहाँ गए तो आपकी जो वैल्यू है इट विल बिकम 8.7, और ऊपर गए तो फिर और कम 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 होती जाएगी। सो लाइक दिस इट इज़ इफेक्टिंग। तो हाइट का भी असर उस वैल्यू पे पड़ता है। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज़ द फैक्टर चेंज विद द डेप्थ। अब हम ऐसा बोलते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं होता, उल्टा है। ये एक अर्थ है, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इतनी पूरी अर्थ का जो मास है, ये जो टोटल क्वांटिटी है पूरी क्या कर रही है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। मतलब यहाँ पे मास बहुत ज़्यादा है और फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। वही ऑब्जेक्ट आप अंदर वाले इस लेयर पे लेके आओगे, अगर इस लेयर पे आओगे तो इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ये वाला अंदर का जो मैटर है, ये जो मास है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ना कि ये बाहर का जो बच गया है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास कम हो गया, मास कम हो गया तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ अर्थ के अंदर सपोज जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ जाके एक लिमिट पे जाके आपकी जो जी की वैल्यू है वो कम होगी। क्यों कम होगी, तो वहाँ पे आपका जो मास है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो मास कम हो गया मतलब डेप्थ पे आपकी जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ मास एंड वेट। ये दो कंसेप्ट ऐसे हैं कि जिसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। हमें लगता है कि दोनों ही सेम है, नियर अबाउट देखा जाए तो दोनों ही सेम है, बट अपने साइंस के हिसाब से थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकली उसमें वैरी करता है। अब मास क्या होता है, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका टोटल कितना मैटर है, ओके, उसमें ग्रेविटी का कंसिडरेशन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए मास। और वेट क्या होता है, वेट मतलब जिसमें मास प्लस उसके ऊपर जो अर्थ का फोर्स अप्लाई किया जाता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है, तो वो जो बनता है उस ऑब्जेक्ट का, वो बनता है उस ऑब्जेक्ट का वेट। सो इट इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्टेड। उस ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स के साथ अर्थ अट्रैक्ट करती है वो उसमें ऐड हो जाता है उसके मास में। सो यहाँ पे वो बन जाता है वेट, ठीक है। अब मास में क्या होता है, मास की ऐसा यूनिट है केजी और आपका वेट का ऐसा यूनिट है न्यूटन। मास ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है कि जिसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ग्रेविटेशन कहाँ एक्ट होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, वो जहाँ ऑब्जेक्ट है, जहाँ सेंटर है अर्थ का, जैसे भी यहाँ देखा हमने तो ये सेंटर है, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो सीधा अंदर सेंटर की तरफ होगा।
सो इसीलिए आपकी जो हाइट वेट है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी में आता है। स्केलर को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसलिए स्केलर मास को कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से, सो मास आपकी स्केलर क्वांटिटी में आता है। मास की वैल्यू जो है वो कहीं पे भी जाओ वहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं, बट आपकी जो वेट है ये चेंज होता जाएगा। सपोज अभी मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसका वज़न है 10 kg, अर्थ के ऊपर है जिसका वज़न 10 kg है, और अभी कैसे 36 kg, ठीक है। वही चीज़ आप मून के ऊपर लेके गए तो मून के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, 36 का 1/6 कम हो जाता है, मतलब वहाँ जाके उस ऑब्जेक्ट का वज़न 6 kg दिखाएगा, लेकिन उसके मास में मतलब उसके अंदर के कंटेंट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसकी किस में चेंज होगा, उसके वेट में चेंज होगा। जहाँ आप प्लेस टू प्लेस जाओगे वहाँ पे उसकी ग्रेविटी कितनी असर करती है उसके हिसाब से उसका वेट वहाँ पे चेंज होगा। मतलब जो 36 kg अर्थ के ऊपर था, मून के ऊपर जाने के बाद अगर फिर से उसका हमने वहाँ पे मास किया तो मास उतना ही रहेगा, लेकिन उधर जाके हमने फिर वेट किया तो अर्थ के ऊपर 36 था न्यूटन, तो अर्थ मून के ऊपर जाके उसकी वैल्यू 6 टाइम्स कम हो जाएगी। सो 36 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 6 न्यूटन, तो वहाँ जाके उसकी जो वेट है वो 6 न्यूटन हो जाएगा। दूसरा, इट कैनॉट बी ज़ीरो। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कभी भी ज़ीरो, क्योंकि पार्टिकल्स है, पार्टिकल हम काउंट कर सकते हैं ना, इनविजिबल तो नहीं रहता वो। सो इट कैनॉट बी ज़ीरो, बट वेट इट कैन बी ज़ीरो। आपके कंटेंट से कोई लेना देना नहीं, वहाँ पे ग्रेविटी से असर करता है। जितनी ग्रेविटी कम उतना ज़्यादा वेट, उतना कम वेट, जितनी ग्रेविटी ज़्यादा उतना ज़्यादा वेट। अर्थ के ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा है तो हमारा पूरा वज़न अगर 36 kg दिखता है, मून के ऊपर यही ग्रेविटी कम है, तो मून पे वही आदमी 36 kg का आदमी अगर मून पे जाता है तो उसमें वहाँ जाके उसका वज़न जो है वो 36 का 6 टाइम्स कम करो, 36 डिवाइडेड बाय 6 करो, सो आंसर आता है 6 न्यूटन। ये वेट होता है। सो ये दोनों डिफरेंस मास और न्यूटन का है। ओके, Thank you for watching the video. Stay home, stay safe. If you like the video, please like, share and subscribe. We will be meeting soon in the next video with the remaining topics. Till then, you read the lesson and understand and complete the exercise given below the chapter.